Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you people are fine. As you know that we have started the online class work in your NEET notebooks, so you can come to school to collect your notebooks after 2 days as you have submitted. आप लोगों अपनी 2 दिनों के बाद आपने जब नोटबुक्स का सबमिट की हैं उसके 2 दिन के बाद आप आके अपनी नोटबुक्स जो हैं वो ऑफ़िस से लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप सब जितने भी बच्चे हैं आपको पता है कि हमने मंडे से ऑनलाइन क्लासेस में होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग अपनी नोटबुक्स आकर टाइम पर लेके चले जाएं। सो आई एम हेयर टू वेलकम यू ऑल टू बिशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 साइंस ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 3. We have started unit number 6. The name of the unit is material. As you know that it is a very lengthy unit, so I am going to divide it on 4 to 5 टॉपिक्स. ठीक है, आपको पता है कि ये यूनिट जो है वो काफ़ी लेंथी है, इसीलिए मैंने 4 to 5 टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया है. तो अब जितना भी हमने पढ़ा है आई एम गोइंग टू रिवाइज और रिकैप्चुलेट द प्रीवियस टास्क विच आई हैव टॉट यू बिफोर. सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड मटीरियल. व्हाट आर मटीरियल्स? आई हैव टोल्ड यू दैट मटीरियल इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब व्हाट थिंग्स आर मेड फ्रॉम. देन I have told you about the types of material, that there are different types of material like wood, like metal, paper, fabric, plastic. These are all the types of a material, and we are using these type of material in our daily lives, which make our lives very easy. Then we have discussed the properties of different metals. As you know that different materials have different properties, and these properties make them suitable for their different uses. Okay, so we have started with the transparent and opaque material. Now what are transparent material? Transparent materials are those material which allow light to pass through them. It means you can easily see through them, like your spectacles, like your window screen, like your glass, like clear water. These all are transparent material. Then opaque materials are those material which do not allow light and which do not let the light to go through them. ये लाइट को गो थ्रू होने नहीं देती. यू कैन नॉट सी थ्रू देम, लाइक योर डोर, वॉल, your book, your wool. It means your fabric. These are the material which do not allow light to pass through them. Then we have discussed waterproof and absorbent material. Waterproof materials are those material which do not soak up the water, and absorbent materials are those material which absorb the water. For example, waterproof material, rainy cloth, plastic, umbrella, and absorbent materials are paper, fabric, duster, sponge. These can absorb the material very easily. Then we have discussed about the magnetic and non-magnetic material. Magnetic materials are those material which are attracted towards the magnet, and non-magnetic materials are those material which do not attracted towards the magnet. For example, magnetic materials are all the metals are attracted towards the magnet, so these are called magnetic. And wood, rubber, paper, plastics are non-magnetic material. Then flexible and rigid material we have discussed. Flexible materials like cloth, like paper, they can be bent easily, and rigid material cannot be bent easily. Okay, then strong and hard and weak and soft materials. Strong and hard materials are those material like rocks and stones. These are difficult to break, and weak and soft materials are easy to break. Okay, then in the last online class I have taught you about the conductor and insulator. Conductors are those material which allow which can pass on the heat and electricity. ठीक है, these are the material which allow heat and electricity to pass through them, and insulators are those material which do not allow heat and electricity to pass through them. Conductors means all the metals are called conductors, and water is also a conductor.
वाटर भी जो है वो एक कंडक्टर है क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को और बिजली को पास ऑन होने देता है. इंसुलेटर्स आर वुड, plastic, rubber. These are the insulator which do not allow electricity and heat to pass through them. Then we have discussed about the natural resources, and natural resources are those things which come from the nature. ये nature से हमें हासिल होती हैं, जिसमें नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है पेपर. पेपर कौन सा पॉइंट है? पेपर जो है वो एक मैन मेड मटीरियल है और ये हमें वुड फाइबर से हासिल होता है. दैट इज़ अ नेचुरल मटीरियल एंड पेपर कैन बी बर्न ईजिली. इट कैन चेंज इट्स प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ये चेंज आउट करता है. बट इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग. ये पैकिंग के लिए, रैपिंग के लिए, राइटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. ठीक है, आई होप कि ये जितना कुछ भी मैंने आपको मटेरियल के यूनिट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, जितने भी मटेरियल्स पढ़ाए हैं जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि साइड बाय साइड मैं आपको प्रीवियस नॉलेज मस्ट दे रही हूँ ताकि आप लोग ये टॉपिक्स जो हैं वो भूलें नहीं और इनके मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. और ये जितने भी सेकंड पॉइंट्स हैं ये इसके ऑपोजिट है. ट्रांसपेरेंट मटेरियल अगर लाइट को अलाउ करता है तो ओपेक नहीं करता. वाटर प्रूफ मटीरियल वाटर को सोक अप नहीं करता लेकिन अब्जॉर्बेंट करता है. इसी तरह मैग्नेटिक मटीरियल जो है दीज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट बट नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स आर नॉट. इसी तरह फ्लेक्सिबल मटीरियल्स आर ईजिली टू बेंड बट रिजिड मटीरियल्स आर नॉट. स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटीरियल्स आर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक बट वीक एंड सॉफ्ट आर नॉट. इसी तरह कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर. These can allow heat and electricity to pass through them, rather insulators are not. ठीक है, तो इट मीन्स जितने भी ये मटीरियल्स हैं ये अपने मेन मटीरियल्स के ऑपोजिट होते हैं. फिर वी हैव डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें नंबर 1 मैंने आपको पेपर पढ़ाया. सो टुडेज टॉपिक इज वी विल डू द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बुक पेज नंबर 56 + 57 and written work of unit number 6. We will we will prepare the title page and we will also do question number 1 and 2 of unit number 6. Now what are materials? Materials क्या होते हैं? They come from rocks called ores. Metals are the second natural material. ये second natural materials हैं. नेचुरल मटीरियल मीन्स ये हमें चट्टानों से, ये हमें रॉक से हासिल होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्स बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड शाइनी. जितने भी मेटल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ये शाइनी होते हैं. दे कैन बी हैमर्ड एंड मोल्डेड विदाउट ब्रेकिंग. आप इसको हैमरिंग करके और मोल्ड करके इसको कोई भी शेप दे सकते हैं और ये ब्रेक नहीं होता जब ये गर्म होते हैं. ठीक है, एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के. और ये मैग्नेटिक होते हैं. मैग्नेटिक मीन्स दे कैन बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट. ये मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते हैं. Now these are the different types of metals. ये different types हैं metals की. कास्ट आयरन है, अल्मोनियम है, ब्रास है, ब्रॉन्ज, स्टील, कॉपर. मेटल्स these all are used in different थिंग्स. ये डिफरेंट थिंग्स के साथ हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं और इसको यूज़ आउट करते हैं ताकि हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी अब हमें पता है कि जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हम इनको उन्हीं मटीरियल्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये इजीली पास ऑन कर सकते हैं. दीज आर द ओर्स. ये वो ओर्स हैं, ये वो चट्टानें हैं जहाँ से हमें मेटल्स हासिल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल. मेटल्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं. मेटल्स चूँकि स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए इनको बाइसिकल्स और मोटर बाइक्स की और कार्स की जो व्हील्स हैं उनके इंटरनल जो पार्ट्स हैं उसको मूव आउट करने के लिए बनाया होता है. कॉपर जो है वो हम वायर्स में और केबल्स में यूटिलाइज़ करते हैं ताकि वहाँ से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सके. इसी तरह आयरन है, स्टील है, हम उसको सॉस पैन्स के लिए यूज़ करते हैं, देचकियों के लिए, डिशेस के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें और उसके अंदर आप इजीली खाना पका सकें, कुकिंग कर सकें. इसी तरह नॉब्स हैं, कीलों के लिए, नेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, चेन के लिए यूज़ किया जाता है. आजकल तो मेटल की ज्वेलरी भी अवेलेबल है. ठीक है, मेटल की ज्वेलरी अवेलेबल है जो कि मार्केट्स में इजीली आपको मिल सकती है, आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं. ठीक है,
Now conductor, these are, as you know that these are the good conductors of heat and electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर्स हैं, और ये कॉपर, लेड, टिन, निकल, स्टील एंड जिंक, ये जितने भी कंडक्टर्स हैं ये हमारी लाइफ को और बेटर बनाते हैं, हमारी लाइफ को और यूज़फुल बनाते हैं, और इसको हम यूटिलाइज़ करके अपने डिफरेंट कामों को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह जो गोल्ड है वो भी एक मेटल है जिसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसको मोल्ड आउट करके, इसको पिघला के, इसको मेल्ट आउट करके बहुत सारे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, और आजकल जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाई गई है उसको भी गोल्ड पॉलिश किया जाता है ताकि वो शाइनी हो सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक भी जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ये डायरेक्टली हमें नेचर में फाइंड आउट नहीं होता, नॉट फाउंड नेचुरली, ये हमें नेचुरली फाउंड नहीं होता। जो केमिकल्स हमें ज़मीन से मिलते हैं, जो ऑयल्स हमें ज़मीन से मिलते हैं, हम उन ऑयल से एक केमिकल निकालते हैं, और उस केमिकल से फिर क्या बनाई जाती है, प्लास्टिक बनाई जाती है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड वाटर प्रूफ, ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट भी बहुत सारे बर्तन आपके पास अवेलेबल हैं, और जैसा आपकी मिनरल वाटर्स हैं, मिनरल बॉटल्स जो हैं वो आप ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हो, उसके आप इजीली उसको सी थ्रू कर सकते हो, और उसके देखने के बाद उसको इजीली सी थ्रू कर सकते हैं आप उसको देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। इसी तरह जो आपके पास स्पून्स हैं उनको भी आप प्लास्टिक में यूज़ करते हो, और उसको यूटिलाइज़ करके आप डिफरेंट चीज़ें बनाते हो। बर्तन प्लास्टिक के अवेलेबल हैं, बकेट्स वगैरह अवेलेबल हैं, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं आप मार्केट्स में। ये नॉन मैग्नेटिक होती हैं, नॉन मैग्नेटिक मीन्स ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुई भी होती, और ये दीज आर डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से प्लास्टिक पास ऑन होने नहीं देती। दैट्स वाई जो आपकी केबल है, जो आपकी वायर है, आप देखें उसके अंदर अगर कॉपर है तो वो कोटेड किस चीज़ से हुआ है, प्लास्टिक से कोटेड है। वो प्लास्टिक से कोटेड इस वजह से है क्योंकि अगर आप उसको अगर वो सॉकेट में लगा हुआ है और लाइट ऑन है, बिजली ऑन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, अगर आप उसको होल्ड करते हो, उसको पकड़ते भी हो, तो आपको करंट नहीं लगती, बिकॉज प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, वो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन होने नहीं देता, जिसकी वजह से आप लोगों को करंट नहीं लगती। आप उसको इजीली पकड़ सकते हो, और अगर कहीं से वो तार उतरी हुई है तो तब आपको करंट लग सकती है। ठीक है, आपको करंट लग सकती है, लेकिन जब तक वहाँ पर हीट प्लास्टिक मौजूद है, वो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट नहीं करता, अपने अंदर से पास ऑन होने नहीं देता, जिसकी वजह से आपको करंट नहीं लगती। Many uses of plastic, there are different uses of plastic bags आप यूज़ करते हो, टॉयज़ वगैरह हैं, बच्चों के खेलने के जितने भी टॉयज़ होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, बर्तन बनाए हुए होते हैं, बॉटल्स प्लास्टिक की बनती है, आपके घरों में शैम्पू की बॉटल अवेलेबल है, आप लोगों के घरों में क्रीम्स की बॉटल अवेलेबल है, ये सारी बॉटल्स आप यूटिलाइज़ करते हो और उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो। ठीक है, नॉट सी दे, जैसे स्प्रे बॉटल्स होती हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं, एक आप इजीली इनको ये टूटती नहीं हैं, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो, इनको कंटेनर्स की तरह यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अरसे के लिए जमा रह सकती हैं। ठीक है, देन प्लास्टिक शॉपर्स जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आजकल गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस पर बैन किया हुआ है, क्योंकि जब प्लास्टिक को आप रिसाइकल करते हो, जब प्लास्टिक को आप दोबारा बनाते हो, तो उसके अंदर से एक ऐसा केमिकल निकलता है जो कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दैट्स वाई गवर्नमेंट जो है वो, एक तो ये शॉपर इजीली ख़त्म नहीं होते, जलते नहीं हैं, इनको जलाने के लिए स्पेशल फैक्ट्रीज़ में और स्पेशल जगह पर ले जाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ये शॉपर जब जलते हैं तो इसके अंदर से एक ऐसा मटेरियल निकलता है जिससे आपके लंग्स ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, वो फैब्रिक के बैग्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और बहुत सारी शॉपिंग मॉल्स और बेकरीज जो हैं उन बैग्स को यूज़ कर रही हैं। यूजेस ऑफ प्लास्टिक, अब आपको देखें डिफरेंट यूज़ आपको उसके नज़र आ रहे हैं।
बलून्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, उसके लिड्स हैं, कंटेनर्स हैं, स्पून्स हैं, कॉटन बर्ड्स हैं, ये सारे किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं? ये प्लास्टिक से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ बुक पेज नंबर 56 एंड 57। हम बुक पेज नंबर 56 को 57 को रीड आउट करते हैं। नाउ यू हैव टू ओपन योर बुक एट पेज नंबर 56. You also put your pouches, highlighter और कलर पेंसिल with yourself ताकि हम उनके डिफ़िकल्ट जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर सकें। Now book page number 56. Metals. Metals come from rocks called ores. मेटल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? और रॉक्स से मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं, जो कि क्या कहलाती हैं? ओर्स कहलाती हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड शाइनी मटीरियल। मेटल्स जो होते हैं मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं और चमकदार होते हैं, ये मटेरियल्स होते हैं। आप कॉइन्स देखें वो भी चमकीले होते हैं। जो कटलरी बॉक्सेस हैं आपके पास, कटलरी सेट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। दैट कैन बी हैमर्ड और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। ये जो है मोल्ड किए जाते हैं, हैमरिंग इस पर की जाती है और इनको मोल्ड आउट किया जाता है इनटू डिफरेंट शेप। आप इनको शेप्स तब दे सकते हो जब ये गर्म होते हैं, व्हेन दे आर हॉट। अगर ये हॉट नहीं है, यू कैन नॉट गिव देम अ शेप। ना ये मुड़ते हैं ना ये टूटते हैं। ये शेप्स इनको तब दी जाती हैं जब ये एक्सट्रीमली हॉट होते हैं। वहाँ पर उनको हैमरिंग की जाती है, हथौड़े मारे जाते हैं और उन हथौड़ों की वजह से ये अपनी शेप जो है वो चेंज करते हैं विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। Their properties make them useful for making objects such as cutlery, saucepans, cars and coin. इनकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इन्हीं खसूसियत की वजह से इनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कटलरी सेट्स बनते हैं, सॉसपेंस बनते हैं, कार्स हैं, कार के स्पेयर पार्ट्स हैं, कॉइन्स हैं, ज्वेलरी आजकल बन रही है। जो जितने भी सॉसपेंस हैं बेटा, आप लोग जब देखें तो वो उसका जो चूल्हे पे रखने वाली हिस्सा जो होता है वो स्टील का या आयरन का, स्टील का या सिल्वर स्टील का बना हुआ होता है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है इट मस्ट बी मेड ऑफ प्लास्टिक। वो प्लास्टिक का बना होता है ताकि आप उसको होल्ड कर सकें। प्लास्टिक उसको हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, हीट को अपने अंदर से पास ऑन होने नहीं देता और आप उसको ईजिली वहाँ होल्ड कर सकते हो, ठीक है। मैनी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कि अच्छे कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। फॉर एग्ज़ाम्पल द कॉपर वायर्स इनसाइड द टोस्टर लेट द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। जो कॉपर वायर होती है टोस्टर के अंदर, अगर आप लोगों ने कभी टोस्टर देखा हो तो उस टोस्टर के अंदर कॉपर की पतली पतली तारें लगी होती हैं। आप जैसे ही उसका स्विच ऑन करके उसके अंदर ब्रेड डालते हो, वो कॉपर वायर्स जो हैं उसको हीट अप करती हैं, उसको गर्म करती हैं और उस ब्रेड को और पका रही होती हैं। वो पकाती हैं उसको, जब वो पक जाता है तो वो आप उसमें से एक बटन प्रेस करते हैं, उसी तरह वो ब्रेड ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर दे वांट टू टेल यू कि कॉपर वायर्स की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास ऑन हो रही है पूरे टोस्टर में। सम मेटल्स आर मैग्नेटिक। कुछ मेटल्स जो होते हैं मैग्नेटिक होते हैं। आयरन इज़ अ मोस्ट मैग्नेटिक मटीरियल। सम स्टील इज़ ऑल्सो मैग्नेटिक बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन। कुछ मेटल्स जो होते हैं, कुछ आयरन जो होता है वो मोस्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और स्टील जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा आयरन होती है, इसलिए भी वो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। आप जैसे आप कॉमन पेन्स ले लें, सेफ्टी पिन ले लें, कीज़ हो गई, लॉक्स हो गए, ठीक है। आप कीज़ को जैसे मैग्नेट की तरफ लेके जाते हो, वो उसके साथ उसमें जो एक इनविजिबल फोर्स है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स की वजह से वो उसके साथ टच हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वुड लो और वुड को मैग्नेट की तरफ लेके जाओ तो क्या वो उसके अंदर उसके साथ अट्रैक्शन शो करता है? नो, कभी भी नहीं करता। सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो मेटल्स हैं जो कि उसके साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है। ये सारे मेटल्स जो होते हैं मैग्नेटिक होते हैं मोस्टली। देन प्लास्टिक आर मटेरियल दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली। प्लास्टिक वो मटेरियल है जो कि हमें नेचुरली फाउंड नहीं होता, बट आर मेड फ्रॉम केमिकल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल। लेकिन ये एक केमिकल से मिलके बनती है जो कि कहाँ से निकाला जाता है? ऑयल से निकाला जाता है, ठीक है।
ऑयल ये नेचुरली हमारी ज़मीन में हमें नहीं मिलती, लेकिन हमारी ज़मीन में जो ऑयल्स अल्लाह ताला की वजह से हैं, अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में से एक ऑयल है। उस ऑयल को में से एक केमिकल निकाला जाता है और उस केमिकल से क्या यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक बनाई जाती है। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ एंड कैन बी मेड इनटू एनी शेप और कलर। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वाटर प्रूफ होती है और इससे बहुत ज़्यादा शेप्स बनाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा कलर्स जो हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा जब आप किसी भी प्लास्टिक की शॉप में बेटा जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि कितने कलरफुल वहाँ पर टॉयज़ वगैरह पड़े हुए हैं या कलरफुल बर्तन पड़े हुए हैं, तो आप उन कलरफुल बर्तनों को देख कर यू वांट टू बाय देम, आप चाहते हैं कि आप उनको बाय कर लें, आप उनको ख़रीद लें, वो इतने ज़्यादा खूबसूरत कलर्स में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, दे आर ओके, नेक्स्ट वन है दे आर मैनी प्लास्टिक कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट। बहुत सारी प्लास्टिक ऐसी होती है जो कि ट्रांसपेरेंट बनाई जाती है ताकि आप उसके अंदर से देख सकें कि इसके अंदर जो मटेरियल डाला गया है वो क्या डाला गया है। ठीक है, दे आर नॉन मैग्नेटिक एंड डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन मैग्नेटिक होते हैं, ये मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते और ये गुड कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। Plastics are used to make all sort of things such as plastic bag, plastic bottles and toys. ये जितने भी प्लास्टिक हैं इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टॉयज़ हैं बच्चों की, बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, बैग्स हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, इनके लिए यूज़ किया जाता है। आप जब बारिश हो रही होती है या जो कॉटन्स होते हैं उनको भी प्लास्टिक से रैप आउट किया जाता है क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। आप रेन कोट्स देखते हैं ना और जो अम्ब्रेला देखते हैं उसको भी प्लास्टिक शीट से रैप अप किया जाता है ताकि उसके अंदर पानी जो है वो इजीली ना जा सके। ओके बेटा, नाउ you have to open your book, you have to open your notebooks at the new page। आपने न्यू पेज पर अपनी नोटबुक्स को ओपन करना है। आपने क्या करना है, यहाँ टॉप पर आज की डेट लिखनी है, दैट इज़ 19/1/21। 19/1/21 यहाँ डेट लिखनी है। यहाँ पर यू विल ड्रॉ मार्जिन लाइन, आपने यहाँ पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। ये टाइटल पेज आपने अपनी नोटबुक्स पर नहीं लिखना, ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिखा है ताकि आपको पता लगे कि ये टाइटल पेज हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने इससे पहले कोई यूनिट नंबर 6 का काम नहीं कराया। आप लोगों ने दिसंबर टास्क में जो यूनिट नंबर 6 के आंसर्स किए हैं उसके बाद भी आपने ये वाले आंसर्स दोबारा करने हैं। जिन बच्चों ने किए हैं तो वेल एंड गुड, आपने उन पर दोबारा भी काम करना है। किसी बच्चे ने मुझे ये नहीं कहना कि मैडम हमने एक दफ़ा किया हुआ था दिसंबर टास्क में, हमने इसलिए उस आंसर को रिपीट नहीं किया। ठीक है, आप सब ने वो करना है। वो आपका दिसंबर टास्क था जिसमें आपको ऑलरेडी नंबर्स हम दे चुके हैं। अब आपका प्लानिंग का काम है जो हमारा इंक्लूडेड है, जो कि आपने मस्ट करना है। आपने अपनी नोटबुक्स में किया है या नहीं किया, आपने न्यू पेज पर आपने अपना टाइटल पेज प्रिपेयर करना है, डबल मार्जिन लाइन लगानी है, शॉर्प करना है अपनी पेंसिल को, डेट लिखनी है। सबसे पहले टॉप पर आपने 4 लाइंस में क्या लिखना है, यूनिट नंबर 6। कैपिटल लेटर्स में आपने लिखना है यूनिट नंबर 6। देन न्यू लाइन में आपने लिखना है मटीरियल्स, MATERIALS, मटीरियल्स। Then again in a new line you will write question/answers and this writing would be in capital letter, ये भी capital letters में आपने लिखनी है। Then in the last line you will write book exercise question number 1, 2, 3, 4. If this thing will not complete your this line, so you can utilize use the next line. अगर ये एक complete line में नहीं आता, it's okay बेटा, आप new line में लिख सकते हैं। बुक पेज नंबर 59 एंड 60 आपने न्यू लाइन पर लिखना है और यहाँ पर यू विल ड्रॉ एन एंडिंग लाइन, आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ये जितने भी हेडिंग्स हैं इनको डबल अंडरलाइन करना है, बहुत नीटली काम करना है। और उसको अगर आप शेड करना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो डू द शेडिंग हेयर, ठीक है, आप शेड भी कर सकते हैं।
दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा. You will draw a margin line here, you will write a date here, then in the first line you will write unit number 6, in the second line you will write material, in the next line write question answers, and in the last line you will write book exercise question 1, 2, 3, 4 and book page number 59 plus 60, and these all letters would be capital. In the last you will draw a ending line. In ending line आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी है एक लाइन छोड़कर. ठीक है. In the new page, on the new page you will again write the date here, you will draw the margin line. आपने margin line ड्रॉ करनी है. टॉप पर आपने लिखना है यूनिट नंबर 6 मार्जिन लाइन के साथ, मिडल में नहीं लिखना. ठीक है. ये जितने भी अभी टाइटल पेज पे मैंने आपको हेडिंग करवाई है बेटा, ये भी आपने मार्जिन लाइन के साथ लिखना है, मिडल में नहीं लिखना, सेंटर में नहीं लिखना. टॉप पर आप यू विल राइट यूनिट नंबर 6, देन मटीरियल्स, देन क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. पहले आपने लिखना है यूनिट नंबर 6 लिखना है, फिर न्यू लाइन में आपने मटीरियल लिखना है, फिर न्यू लाइन में आपने लिखना है क्वेश्चन आंसर, एंड दीज 3 हेडिंग्स विल बी डबल अंडरलाइन. ये तीनों की तीनों हेडिंग्स जो होंगी वो डबल अंडरलाइन करनी है. क्लियर बॉयज. फिर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपने लिखना है Q1, उसके बाद है व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड यू विल राइट अ क्वेश्चन मार्क हेयर. यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन मार्क पुट करना है. देन इन द न्यू लाइन यू विल राइट ANS. आपको पता है यहाँ पर भी एक रेड कलर की मार्जिन लाइन ड्रॉ हुई हुई होती है. आपने क्वेश्चन 1 और आंसर वहाँ पर लिखना है. ठीक है. आंसर जब आप रेड कलर की मार्जिन लाइन से इस तरफ लिखेंगे, उसके बाद यू विल राइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन कैपिटल लेटर. ये कैपिटल लेटर की हेडिंग है. आपने क्या लिखना है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और इसको भी डबल अंडरलाइन करना है. ठीक है बेटा, इसको भी डबल अंडरलाइन करना है. देन न्यू लाइन में यू विल राइट द मटेरियल विच अलाउ लाइट, एंड लाइट इज अगेन अ मेन वर्ड हेयर. इसको भी डबल अंडरलाइन करें. लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. I am repeating again. What are transparent material? Then in the next line you will give the heading, and in the third line you will write the materials which allow light. Light is a main word, so you will double underline it. To pass through them are called transparent materials, full stop. Okay. Then in the next line you will give the heading of example and also double underline it. ठीक है. आपने न्यू लाइन में एग्जाम्पल्स की हेडिंग देनी है और उसको भी डबल अंडरलाइन करना है. एंड इन द न्यू लाइन यू विल राइट ग्लास. आपने यहाँ पर लिखना है ग्लास एंड ड्रॉ अ फुल एंडिंग लाइन हेयर. ओके. यू विल डबल अंडरलाइन यूनिट नंबर 6 मटीरियल्स, क्वेश्चन आंसर्स, and then you will also double underline transparent material heading, then the main word light, and then example. Okay. आपने ये सारे जो अभी मैंने आपको बेटा बताए हैं इसको डबल अंडरलाइन करना है और एक एंडिंग लाइन फुल पेज पर लगा देनी है. ठीक है. फिर ऑन द न्यू पेज यू विल अगेन राइट द डेट हेयर. यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, यहाँ पर आपने मार्जिन लाइन लगानी है. मार्जिन लाइन आपने डबल लगानी है. मार्जिन लाइन जो यहाँ पर रेड कलर की लगी है, यहाँ आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर ओपेक मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखना है कि व्हाट आर ओपेक मटेरियल. यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क हेयर. देन अगेन रेड मार्जिन लाइन के इस तरफ यू विल राइट आंसर ANS. देन गिव द हेडिंग ऑफ ओपेक मटेरियल. ओपेक मटेरियल की आपने हेडिंग देनी है और इसको भी डबल अंडरलाइन करना है. क्लियर बॉयज. ओपेक मटेरियल को भी डबल अंडरलाइन करें. The materials which do not is a main word here. ठीक है. Do not is a main word here. The material which do not allow light to pass through them are called opaque materials. I am repeating again boys. The material which do not is a main word, so you will double underline this main word. Allow light to pass through them are called opaque materials. Okay boys. Then in the next line you will put a full stop here. In the next line give the heading of example. आपने यहाँ पर example की heading देनी है and you will in the new line you will write wood. ठीक है. wood जो है वो एक opaque material है, यहाँ पर आपने wood लिखना है. I am repeating again.
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर ओपेक मटेरियल, क्वेश्चन मार्क। आंसर ओपेक मटेरियल की हेडिंग है, यहाँ इसको डबल अंडरलाइन करना है बेटा। इन द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट दोज द मटेरियल्स विच डू नॉट इज अ मेन वर्ड, यू विल डबल अंडरलाइन इट। Do not allow light to pass through them are called opaque material, full stop। एग्जाम्पल है, न्यू लाइन में आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की, और वो क्या है, वुड है। देन अगेन यहाँ पर आपने फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आज मैंने आपको टाइटल पेज रेडी करवाया है नोटबुक्स में, आपने यूनिट नंबर 6 का टाइटल पेज प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देन यू विल ऑल्सो राइट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर ओपेक मटेरियल। इन दोनों आंसर्स को लिखने के बाद आपने फुल एंडिंग लाइन्स लगानी है और अपनी कंसर्न टीचर को भेजना है, ऑन टाइम भेजना है। और जो करेक्शन है वो आपकी कंसर्न टीचर, जो आपकी चेकर है, वो ऑन टाइम करके आपको दोबारा भेज देंगी कि आपने इसमें क्या करेक्शन करनी है। उसको करेक्ट करने के बाद आपने इसको फिल अपनी टीचर जब आपको वो रिटर्न करती हैं करेक्शन, उसमें अगर कोई है तो आपने वो करेक्शन करनी है और अपनी टीचर को भेजना है, ठीक है बेटा। आज की आपकी डायरी है साइंस। प्रिपेयर द टाइटल पेज ऑफ यूनिट नंबर 6 एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास वर्क कॉपी। कौन सा आंसर्स आपने टाइटल पेज प्रिपेयर करना है और क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाट आर ओपेक मटेरियल। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है आप सबको समझ आ गई होगी, आपको रिटन वर्क भी क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या करवाना है। आपने रिटन वर्क करके अपनी कंसर्न चेकर को भेजना है ताकि वो ऑन टाइम इसमें से करेक्शन करके आपको भिजवा दें। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको क्लास दूंगी तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे।